اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 27ویں مجلس اسی سال اسی مہینے کی 28ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ حسب عادت دہلیز کی چھت پر تشریف فرما تھے۔ دروازے کے پاس ایک زینہ یعنی سیڑھیاں تھیں۔ جب بندے نے سر زمین پر رکھا تو ارشاد فرمایا کہ وہیں زینے کے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ جب بھی دروازے کے ایک پٹ پر ہوا کا جھونکا لگتا وہ بند ہو جاتا۔ بندے نے اس دروازے کو اپنے ایک ہاتھ سے مضبوط پکڑ لیا تاکہ کھلا رہے۔ کچھ وقت گزرا، بندے کی طرف نگاہ فرمائی، دیکھا کہ در پکڑے بیٹھا ہوں۔ ارشاد ہوا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بندے نے سر زمین پر رکھ دیا اور عرض کی کہ میں نے یہ در پکڑ لیا ہے۔ تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا کہ تم نے یہ در پکڑا ہے اور مضبوط پکڑا ہے۔ اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شیخ بہار الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرماتے کہ ہر دری اور ہر سری نہ بنو، ایک در پکڑو اور مضبوط پکڑو۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز صبح کے وقت کوئی دیوانہ ایک دروازے پر کھڑا تھا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو خلقت باہر آئی۔ ہر شخص کسی جانب روانہ ہو گیا، کوئی دائیں طرف، کوئی بائیں طرف، کوئی سامنے، ہر ایک کسی طرف چلا گیا۔ دیوانے نے جب یہ دیکھا تو بولا کہ یہ لوگ پراگندہ اور الگ الگ اور مخالف جاتے ہیں، جب ہی تو کسی ٹھکانے پر نہیں پہنچتے۔ اگر سب ایک راہ جائیں تو مقصود تک پہنچ جائیں۔ قلت طعام کا ذکر نکلا اور اس بات کا کہ بھرے پیٹ پر کچھ کھانے کا کیا نفع نقصان ہے۔ پھر زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ بھرے پیٹ کچھ کھانا دو آدمیوں کے سوا کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ ایک تو وہ جس کے ہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہو، اگرچہ وہ شخص سیر ہو چکا ہو، تاہم اس خیال سے مہمان کچھ کھا لے، اس کو جائز ہے کہ کسی قدر بھرے پیٹ پر بھی مزید کھا لے۔ دوسرے وہ روزے دار جس کے لیے سحری کا سامان نہ ہو اور وہ جانتا ہو کہ سحری کے وقت کوئی چیز نہ ہوگی، اگر وہ چھکا ہوا ہونے پر بھی کچھ کھا لے تو جائز ہے۔ پھر مسنون دعاؤں کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہو کہ کسی علاج سے بھی وہ مصیبت اور بلا دفع نہ ہوتی ہو تو جمعے کے روز عصر کی نماز کے بعد سے غروب کے وقت تک کسی کام میں نہ لگے سوائے ان 3 اسما کے ذکر کے، اور ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھے۔ وہ 3 اسم یہ ہیں: یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ ضرور اس رنج سے خلاصی مل جائے گی۔ 28ویں مجلس اسی سال ماہ شوال کی 8ویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ اس روز اس ادنا غلام حسن علا سجزی نے عنمانی کے جمع کرنے کا حال عرض کیا۔ بڑا اچھا وقت اور بڑی باراحت خلوت تھی۔ بندے نے سر زمین پر رکھا اور گویا ہوا کہ میری ایک عرضداشت ہے، اگر حکم ہو تو پیش کروں۔ ارشاد ہوا ضرور کہو۔ بندے نے عرض کی کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ مخدوم کی غلامی میں داخل ہوں، اور ہر بار جب بھی قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی ہے زبان گوہر بار سے فوائد سنے ہیں، چاہے واض و نصیحت اور تائید کی ترغیب ہو، چاہے حکایات مشائخ اور ان کے حوال ہوں، ہر باب میں روح افزا کلمات اس لکھنے والے کے کان تک پہنچے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ بیچارے کا دستور عمل بلکہ مجھ درماندہ کے لیے راستے کی رہنما بن جائیں۔ ان کو اپنی فہم کے بقدر میں نے قلم بند کر لیا ہے، اس لیے بھی کہ بارہا زبان مبارک پر آیا ہے کہ کتاب مشائخ اور ان کے ارشادات جو انہوں نے سلوک کے بارے میں فرمائے ہیں نظر کے سامنے رکھنے چاہیے۔ بس کوئی بھی مجموعہ میرے مخدوم کے جہاں بخش ملفوظات سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بس اس وجہ سے بندے نے جو کچھ بھی زبان مبارک سے سنا جمع کر لیا اور اب تک اس کا اظہار نہیں کیا ہے۔ حکم کا منتظر ہوں کہ کیا فرمان صادر ہوتا ہے۔ جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ عرضداشت سنی تو حکایت بیان فرمائی کہ جب میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں پہنچا
तो यही बात मेरे दिल में भी आई थी कि जो कुछ हजरत की जुबान मुबारक से सुना करूंगा, लिख लिया करूंगा। अव्वल रोज दस्तबोसी की दौलत मिली तो पहली बात जो शायख से सुनी ये थी कि जुबान मुबारक से फरमाया, ऐ कि तेरे फिराक की आग ने दिलों को कबाब कर दिया और तेरे इश्तियाक के सैलाब ने जानों को खंडर कर रखा है। उसके बाद मैंने चाहा कि कदम बोसी के इश्तियाक का हाल हजरत की खिदमत में कुछ अर्ज करूं, मगर हजरत शायख की मौजूदगी के रौब ने मुझ पर गलबा किया। सिर्फ इस कदर कह सका कि हुजूर आली की कदम बोसी का इश्तियाक बहुत ही गालिब हो गया था। जब शेख ने रौब का असर मुझ पर देखा तो ये लफ्ज जुबान मुबारक पर आया, हर आने वाला कुछ मरूब होता है। अलगर्ज उस रोज शेख से मैंने जो कुछ सुना अपने मुकाम पर वापस आने के बाद उसे लिख लिया। इसके बाद जब भी कुछ सुनता उसको मैं कलम बंद कर लेता, यहां तक कि ये बात मैंने शेख को बताई। चुनाचे बाद में जब कभी कोई हिकायत या कोई नुक्ता बयान फरमाते तो पूछ लेते कि तुम मौजूद हो। इस तरह इसका इत्तेमाम था कि अगर मैं मौजूद ना होता तो जब दोबारा खिदमत में हाजिर होता तो वो फायदा जो मेरी गैर मौजूदगी में बयान फरमाया था उसको दोहराते। उसके बाद ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि मैंने एक किरामत देखी कि उन्हीं दिनों में एक शख्स ने मुझे सफेद कागज यकजा मुजल्लद किए हुए दिए। मैंने वो ले लिए और शेखुल इस्लाम के फवायद सब उन पर लिख दिए। ऊपर लिखा कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इसके बाद वो कलमात जो शेख से सुन चुका था लिखे और अभी तक वो मजमुआ मेरे पास है। ये अहवाल बयान फरमाने के बाद बंदे से फरमाया कि वो कागज जिन पर तुमने लिखा है लाए हो? बंदे ने अर्ज की, जी हां लाया हूं। इरशाद हुआ, लाओ। बंदे ने 6 शीट कागज जिन पर लिख चुका था लाकर दस्ते मुबारक में दे दिए। उन्हें मुताले का शर्फ अता फरमाया और तारीफ फरमाई। इरशाद हुआ कि अच्छा लिखा है, और जैसे जैसे पढ़ते जाते फरमाते जाते अच्छा लिखा है। 1-2 जगह मैंने जगह खाली छोड़ दी थी। पूछा, खाली जगह क्यों छोड़ी है? अर्ज की कि ये हरूफ अच्छी तरह समझ में नहीं आए थे। शफकत फरमाई और हर बात का बकिया हिस्सा बयान फरमाया। वो कलमात मुकम्मल हो गए। ये थी उस रोज की शफकत और रहमत और शिकस्ता परवरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर बारी ताला के फजल और रहमत का जिक्र आया कि खलक के क्यास के खिलाफ कारसाजी फरमाता है। इसके बाद हिकायत बयान फरमाई कि खुलफाए बगदाद में से किसी खलीफा ने एक जवान को कैद किया। उस जवान की मां खलीफा की खिदमत में आई और रोई धोई के इसके बेटे को छोड़ दें। खलीफा बोला कि मैंने हुक्म दे दिया है कि इसको मुस्तकिल कैद में रखा जाए जब तक मेरी आल में से एक आदमी भी खलीफा रहेगा। तेरा बेटा कैद खाने में रहेगा। मैंने इस तरह का हुक्म दे दिया है। बुढ़िया ने जब ये सुना तो आंखों में आंसू भर लाई और आसमान की तरफ मुंह उठाकर बोली कि खलीफा ने तो खुद ये हुक्म दे दिया, अब तू क्या हुक्म करता है? खलीफा ने ये बात सुनी और उसका दिल पलट गया। फरमान जारी किया कि बुढ़िया के बेटे को रिहा कर दें। उसके बाद एक कीमती घोड़ा बुढ़िया के बेटे को अता किया और हुक्म दिया कि इस जवान को अता करदा घोड़े पर सवार करा के बगदाद में गश्त कराएं और उसके सामने ये पुकारते चलें कि ये अल्लाह का आजाद करता है खलीफतुल्लाह के हुक्म के खिलाफ। ये अल्लाह की अता है खलीफा की मर्जी के खिलाफ। फिर मुरीद की काबिलियत और पीर की बख्शिश का जिक्र आया। इस दरमियान हिकायत बयान फरमाई। शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अजीज के मुरीदों में एक शख्स यूसुफ नामी थे। एक दफा उन्होंने शेख के सामने किसी कदर खफकी जाहिर की कि मैं इतने साल से गुलामी में हूं। हर शख्स को शेख की बारगाह से कुछ ना कुछ बख्शिश मिली, मुझे तो इन सब से पहले मिलनी चाहिए थी। ये बात और इस तरह की बातें कहते रहे। शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, तेरी तरफ से भी तो इस्तेदाद और काबिलियत होनी चाहिए, और ना मैं अपने पास से देता हूं। अगर खुदा ताला ही ना दे तो उसको क्या किया जाए? मुरीद इसी तरह शिकायत करता रहा, यहां तक कि उस दरमियान शेख की एक नजर एक छोटे से कामों पर लड़के पर पड़ी। उससे फरमाया कि आओ
जहां शेख तशरीफ फरमा थे उसके सामने ईंटों का ढेर लगा रखा था। शेख ने उसी छोटे बच्चे से कहा कि जाओ इन ईंटों में से एक ईंट हमारे लिए ले आओ। बच्चा गया और एक सालम ईंट शेख के सामने लाकर रख दी। एक मुरीद शेख की खिदमत में बैठे थे। शेख ने दोबारा उस बच्चे से कहा कि जाओ एक और ईंट इन मुरीद के लिए भी ले आओ। वो बच्चा गया और फिर एक सालिम ईंट उन मुरीद के सामने रख दी। इसके बाद फिर शेख ने उस बच्चे से फरमाया कि एक दफा और जाओ और उन मुरीद के लिए भी एक ईंट ले आओ, और ये इशारा उन यूसुफ साहब की तरफ किया। वो बच्चा गया और आधी ईंट लाया और उनके सामने रख दी। शेख ने फरमाया, मैं इसको क्या करूं? क्या मैंने ये अपनी तरफ से किया है? चूंकि तुम्हारी किस्मत में इतना ही था तो मेरी क्या जिम्मेदारी। 29वीं मजलिस। उसी साल माह शवाल की 20वीं तारीख जुमेरात को कदमबोसी की दौलत हासिल हुई। शेख उस्मान हरब आबादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत आई। जुबान मुबारक से फरमाया कि ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उनकी एक तफसीर है। इसके बाद फरमाया कि वो गजनैन में रहते थे, सब्जी पकाते और बेचते, शलगम और चकंदर और इसी तरह की सब्जियों की देग पकाते और बेचते। इसके बाद गैबी इनायत के बयान में ये शेर जुबान मुबारक पर आया, हक ताला चरवाहे को नबूवत का ताज दे देता है, वरना चरवाहे नबूवत को क्या जाने। यानी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम। इसके बाद उनके अहवाल में से बयान फरमाया कि अगर कोई आता और खोटा दिरम उनको देता और जो कुछ उन्होंने पकाया होता उसे खरीदता तो वो इस दिरम को ले लेते, अगरचे जानते होते कि खोटा है, मगर खरीदार के सामने कुछ न कहते, और जो खरा दिरम लाता तो उसको भी खाना दे देते। यहां तक कि खलक को ये ख्याल हो गया कि इनको खरे खोटे की तमीज नहीं है, और बहुत लोग आते और खोटे दिरम दे देते और वो खरे की तरह ले लेते और उन पर जाहिर ना करते और खाना उनके हवाले कर देते। तान के उनके इंतकाल का वक्त आया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, खुदावंदा तू खूब जानता है कि खल्क मुझे खोटे दिरम देती थी और मैं खरे की तरह उन्हें कबूल करता था और उनको वापस नहीं करता था, उनके मुंह पर ना मारता था। अगर मुझसे भी कोई खोटी दात हुई है तो अपने कर्म से उसे वापस न फेर, मेरे मुंह पर न मार। इसके बाद फरमाया कि एक दफा कोई साहिब दिल दरवेश उनके पास आए और उनकी देग में से खाना तलब किया। शेख उस्मान ने कफगीर देग में डाला। जब बाहर निकाला तो सब छोटे बड़े मोती थे। वो दरवेश बोले कि मैं इनका क्या करूं? शेख उस्मान ने फिर कफगीर देग में डालकर निकाला तो सब सोना निकला। इन दरवेश ने कहा कि वो सब कंकर थे और ये पत्थर किस काम के हैं? इस देग में से ऐसी चीज निकालो कि मैं खा सकूं। तीसरी मर्तबा शेख ने कफगीर फिर बाहर निकाला तो वही सब्जी बाहर आई जो पकाई थी। उन दरवेश ने जब ये हाल देखा तो शेख से कहा, अब तुम्हें इस जगह ज्यादा नहीं रहना चाहिए। उसके चंद रोज बाद ही शेख उस्मान रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि जब दरवेश से इस तरह की कोई चीज जाहिर हो जाए तो फिर उसे यहां नहीं रहना चाहिए। और हकीम सनाई ने इस बात को नज़्म किया है, अपना जान अफरोज जमाल ज्यादा ना दिखा, और अगर दिखाया है तो जा काला दाना जला। तेरा वो जमाल क्या है, तेरी मस्ती, और तेरा वो काला दाना क्या है, तेरी हस्ती। इसके बाद जुबान मुबारक से फरमाया कि जो कुछ औलिया जाहिर कर देते हैं वो उनकी मस्ती की वजह से होता है कि वो असहाबे सकर हैं, बरखलाफ अंबिया के कि वो असहाबे सहब हैं। सनाई उसको मस्ती कहता है, यानी जब बेद खोल दिया तो फिर जाने में देर नहीं करनी चाहिए। इस बात को इस इबारत में कहा है, तेरा वो जमाल क्या है, तेरी मस्ती, और तेरा काला दाना क्या है, तेरी हस्ती। इसके बाद जुबान मुबारक से इरशाद हुआ कि आदमी के लिए कश्फो किरामत रास्ते का हिजाब है, काम की चीज मोहब्बत में इस्तिकामत है। वल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। 30वीं मजलिस। उसी साल माह ज़िकात की 23वीं तारीख पीर के दिन कदम बोसी की सआदत हासिल हुई। एक जवान हाजिर हुआ,
ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिलखैर ने उससे पूछा कि तुम्हारे दादा किस पीर के मुरीद थे? उसने जवाब दिया कि शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। ख्वाजा ने फरमाया कि शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत कम किसी को मुरीद करते थे और यही तरीका काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का था। उस मजलिस में मौलाना बुरहानुद्दीन गरीब असमुल्लाह हाजिर थे। उन्होंने पूछा कि उनकी मशीखत व बुजुर्गी अल्लाह ताला और उनके शेख की तरफ से मिली थी, फिर वो किसी को मुरीद क्यों नहीं करते थे? ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिलखैर ने फरमाया कि मुरीद करने ना करने से उनकी बुजुर्गी व मशीखत में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल ये है कि जैसे दो मर्द हों, उन दोनों में कुव्वत मर्दमी मौजूद हो, लेकिन एक औलाद वाला बने और दूसरा ना बने। जो औलाद वाला ना बने उसका मतलब ये नहीं कि उसकी कुव्वत मर्दमी में कोई फर्क है, और ऐसा बहुत देखा जाता है। अंबिया की उम्मत में भी इसी तरह होता है। चुनाचे कहा जाता है कि बरोज़े क़यामत आमन्ना व सद्दकना, जो भी पैगंबर आएगा उसके साथ उसकी उम्मत होगी, किसी के साथ ज्यादा होगी, किसी के साथ कम, और एक पैगंबर तशरीफ लाएंगे जिनके साथ एक ही आदमी होगा। अब उससे उनकी नबूवत में कोई कमी या खराबी थोड़ी होगी। पीर और मुरीदों की मिसाल को भी इसी पर कयास करना चाहिए। 31वीं मजलिस। उसी साल माह ज़िकात की 29वीं तारीख इतवार को कदम बोसी की दौलत हासिल हुई। समा की बात चली और वजद जोश में होता है। जुबान मुबारक से इरशाद हुआ कि 99 इस्माए इलाही में अल वाजिद भी पढ़ते हैं। अल वाजिद के मैनी हैं अल गनी। इसके बाद फरमाया कि अल वाजिद के मानी वजद से भी आए हैं, यानी वजद अता करने वाला। जैसा कि शुक्र उसका नाम है, शुक्र उसको कहते हैं जो शुक्र अदा करे, लेकिन यहां इसके मानी ये है कि बंदों के शुक्र को कबूल करने वाला। इसी तरह अल वाजिद जाहिर में वो होगा जो साहिब वजद हो, और ये बात पाक और बरतर खुदा के लिए दुरुस्त नहीं होगी। बस इस जगह वाजिद के मानी वजद अता करने वाले के हैं। इसके बाद शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आया कि वो समा नहीं सुनते थे। जुबान मुबारक से इरशाद हुआ कि शेख नजमुद्दीन कुबरा अलैह रहमा व रिज़वान फरमाते हैं कि हर नेमत जो आदमी में मुमकिन है वो शेख शहाबुद्दीन को दी गई, सिवाय ज़ौक़े समा के। इसके बाद शेख शहाबुद्दीन के शुगल के इस्तगराक की बात आई। इरशाद हुआ कि एक दफा शेख ओहद करमानी रहमतुल्लाह अलैह शेख शहाबुद्दीन के पास आए। शेख ने अपना मुसल्ला लपेटा और अपने घुटने के नीचे रख लिया, और ये बात मुशाइख के नजदीक बहुत ताजीम की होती है। अलगर्ज जब रात हुई, शेख ओहद ने समा की फरमाइश की। शेख शहाबुद्दीन ने कव्वालों को बुलाया और समा यानी कवाली की जगह आरास्ता की, और खुद एक कोने में चले गए और ताअत व जिक्र में मशगूल हो गए। शेख ओहद और वो लोग जो अहले समा थे समा में मशगूल हो गए। जब सुबह हुई तो खानका का खादिम शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और अर्ज की कि रात को समा था, लिहाजा उस जमात के लिए निहारी यानी नाश्ता होना चाहिए। शेख ने पूछा कि क्या रात को समा था? खादिम ने अर्ज की, जी हाँ था। शेख ने फरमाया कि मुझे खबर नहीं हुई। इसके बाद ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिलखैर ने फरमाया कि शेख शहाबुद्दीन की हालत इस्तगराक को देखो कि इस तरह जिक्र में मशगूल थे कि समा की ऊंची आवाजों की उन्हें खबर ना हुई, और हर बार जब समा को बंद करते थे और अहले समा कुरान मजीद की तिलावत करते थे तो शेख उसे सुनते थे, मगर शेख उनके समा को इस कदर ऊंची आवाज के बावजूद ना सुनते थे। इससे अंदाजा करो कि वो किस दर्जे शुगल में होते थे। इसके बाद लाहौर के मिजारों का जिक्र निकला। जुबान मुबारक से फरमाया कि वहां बहुत बुजुर्ग आराम फरमा हैं। इसके बाद बंदे से पूछा कि तुमने लाहौर देखा है? बंदे ने अर्ज की, जी हाँ देखा है, और वहां के बाज़ बुजुर्गों की ज़ियारत भी की है, जैसे शेख हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे औलिया। इसके बाद जुबान मुबारक से फरमाया कि शेख हुसैन ज़ंजानी और शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहिमा दोनों एक ही पीर के मुरीद हुए हैं, और वो पीर अपने अहद के कुतब थे। शेख हुसैन ज़ंजानी एक ज़माने से लाहौर में रहते थे।
कुछ अरसे बाद उनके पीर ने ख्वाजा अली हजवेरी को हुक्म दिया कि लाहौर जाओ और वहां रहो। शेख अली हजवेरी ने अर्जदाश्त की कि हुसैन जंजानी वहां मौजूद हैं। पीर ने फरमाया कि तुम जाओ, और जब अली हजवेरी उनके इशारे के मुवाफिक लाहौर में पहुंचे तो रात थी। दूसरी सुबह शेख हुसैन जंजानी का जनाजा बाहर लाया गया। फिर बात नज़म की आई। जुबान मुबारक से इरशाद हुआ कि बाज़े मुशाइख की शायरी अच्छी है और बहुत है, जैसे शेख ओहद करमानी और शेख अबू सईद अबुल खैर और दूसरे बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन का कलाम, खासकर शेख सैफुद्दीन बाखरसी रहमतुल्लाह अलैहा खूब कहते थे और शायरी में उन्हें बड़ा गुलू था। इस हद तक के मुरीदों ने उनकी खिदमत में अर्ज किया कि हर शेख की कोई किताब और तालीफ मौजूद है, आप कोई चीज क्यों नहीं लिखते? उन्होंने जवाब दिया कि मेरा हर शेर किताब के बराबर है। उसी रोज इस बंदाए उम्मीदवार हसन अला सजजी को नमाज इशराक तालीम फरमाई। 2 रकत, पहली रकत में फातिहा के बाद आयतल कुर्सी ता खालिदून और दूसरी रकत में आमन रसूल ता आखिर सूरा और आयत अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़ ता वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इसके बाद और 2 रकत नमाज इस्तिआज़ा यानी पनाह के लिए फरमाया। पहली रकत में फातिहा के बाद सूरह फलक और दूसरी रकत में सूरह नास। इसके बाद 2 रकत नमाज इस्तिखारा बताई। पहली रकत में फातिहा के बाद सूरह अल काफिरून और दूसरी रकत में फातिहा के बाद सूरह इखलास और इन दोगाना नमाजों के फौरन बाद जो दुआएं आई हैं उनका हुक्म फरमाया। इसके बाद फरमाया कि 2 रकतें और हैं, वो भी बताऊंगा। ये बात जुबान मुबारक से फरमाई और आंखों में आंसू भर लाए और फरमाया कि जिस रोज शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अजीज ने मुझसे नमाज इशराक के लिए फरमाया था, पहले यही 6 रकतें बताई थीं और इरशाद हुआ था कि 2 और भी बताऊंगा। बत्तीसवीं मजलिस। उसी साल माह जिलहज्जा की 11वीं तारीख जुमेरात को कदम बोसी की दौलत हाथ आई। आदाब मजलिस और पीर की खिदमत में हाजिरी और बैठने के आदाब और जगह हासिल करने का जिक्र निकला। इरशाद हुआ कि अदब यह है कि जब किसी मजलिस में आए तो जो जगह खाली देखें वहां बैठ जाएं, यानी जब पीर की खिदमत में आए तो ऊंची या नीची जगह का ख्याल में ना रहें, जहां भी खाली जगह देखें बैठ जाएं कि आने वाले की जगह वही होती है। फिर फरमाया कि एक दफा रसूल अलैहिस्सलाम वस्सलात किसी जगह तशरीफ रखते थे और सहाबा हल्का बनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतराफ में बैठे थे। इतने में 3 आदमी हाजिर हुए। एक को उस दायरे में जगह मिल गई, वो फौरन वहां आकर बैठ गया। दूसरे को उस हल्के में जगह नहीं मिली, वो दायरे के पीछे बैठ गया। तीसरे ने वहां से मुंह मोड़ा और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मुझे खबर दी कि खुदा ताला फरमाता है कि जो शख्स आया और उसे हल्के के अंदर जगह मिल गई और वहां बैठ गया, हम उसे अपनी पनाह में जगह देते हैं, और जिसको दायरे में जगह नहीं मिली और वो शर्मा के हल्के के पीछे बैठ गया, हम उससे शर्माते हैं। कल कयामत के दिन उसको रुस्वा नहीं करेंगे। जो शख्स मुंह फेर कर चला गया, हमारी रहमत भी उससे मुंह मोड़ती है। इसके बाद ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर ने फरमाया कि अदब यह है कि जो भी आए मजलिस में जहां जगह खाली पाए बैठ जाए, और अगर जगह ना हो तो हल्के के पीछे बैठे। बीच में नहीं बैठना चाहिए कि जो बीच में बैठता है वो मलून यानी लानत किया हुआ होता है। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।